नमस्कार एवरीवन। आज का हमारा जो पॉडकास्ट है वो बहुत इंस्पिरेशनल होने वाला है। आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जो शख्सियत है उनका नाम है चंद्र मिश्रा, जो वाराणसी से है। और 2021 में इन्होंने वाराणसी में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया जो कि भिखारियों के लिए काम कर रही है, जो भिखारियों को सक्षम बनाकर उनको ट्रेनिंग दे करके उनको एम्प्लॉयमेंट देने का काम कर रही है। और इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है बैगर कॉरपोरेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन का जो मोटिव है वो मोटिव है कि आप चैरिटी नहीं दीजिए, आप इन्वेस्ट कीजिए, यानी डोंट डोनेट, इन्वेस्ट। और ये जो इन्वेस्ट किया गया आपका पैसा है वो कंपनी बाद में प्रॉफिट के साथ आपको लौटा भी देती है, यानी कि आप अपनी दी हुई धनराशि के साथ एग्जिट भी कर सकते हैं और उसमें आया हुआ प्रॉफिट भी आप कमा सकते हैं। आफ्टर अ सर्टेन टाइम आप इस दी हुई धनराशि के साथ एग्जिट कर सकते हैं और उससे प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। बहुत बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट ये कंपनी लेकर के आई है, जो कि एक बहुत बड़े सोशल कॉज के लिए काम कर रही है। तो आइए हम सब मिलकर कंज्यूम करते हैं इस पूरे पॉडकास्ट को। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूरा पॉडकास्ट देखें, जिससे कि आप ये भी समझ पाएँ कि अगर आप इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ करके इस सोशल कॉज के लिए काम करना चाहते हैं तो किस तरीके से आप जुड़ सकते हैं, क्या उसका प्रोसेस है, वो सब हमें इस पॉडकास्ट से पता लगेगा। आइए देखते हैं इस पॉडकास्ट को। मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के पॉडकास्ट में। ये पॉडकास्ट जो बहुत ही मोस्ट अवेटेड था मेरे लिए भी, क्योंकि ये बहुत इंस्पायरिंग पॉडकास्ट होने वाला है। सो द थैंक यू अक्षय जी। फर्स्ट क्वेश्चन आई वांट टू आस्क टू यू कि एक इतना बड़ा इनिशिएटिव जो आपने लिया, जो शायद लोग सोच भी नहीं पाते हैं, हु इज इंस्पायर्ड यू टू डू दिस? आखिर आपकी इंस्पिरेशन क्या रही इसके पीछे बैगर कॉरपोरेशन को स्टार्ट करने के लिए? बेगर एक सिंबल है, नॉट ओनली ऑफ द पॉवर्टी बट ऑल्सो हेल्पलेसनेस। होमलेसनेस, हेल्पलेसनेस एंड होपलेसनेस, ये तीनों को अगर आप मिला देते हैं तो बेगार बन जाते। सो यू कैन से कि दैट आई एम एड्रेसिंग द सेम एज ओल्ड प्रॉब्लम दैट इज कॉल्ड पॉवर्टी। आई एम नॉट एड्रेसिंग नथिंग न्यू, बट आई एम एड्रेसिंग द सेम प्रॉब्लम from not only the bottom of the pyramid but from the very foundation of the society itself. And I believe if Yes. we can make beggars self-sufficient, then obviously nobody, not only in India, nowhere in the world, will be say poor or won't have any work. That kind of situation will not arise. So we are addressing that. And I have seen poverty from very close quarters. Being from Orissa, which was once very, very famous or infamous, you can say, for starvation death. If you remember the mid-80s, when Rajiv Gandhi was the Prime Minister, she rushed to one area that is called as Kalahandi. Kalahandi was a black spot in the map of not only India, but in the whole world. Mhm. International media rushed to that small, sleepy tribal district just to cover that starvation death. So I have seen starvation from very close quarters. If you go through the Amartya Sen's, that uh, the entire theories of Amartya Sen, that starts from that Bengal famine. Yeah. And it was not actually Bengal famine, it was Odisha famine. At that time, Bengal, uh, Bihar, West Bengal, Bihar, Jharkhand, Odisha, Assam, they were one state. So the Bengal famine means that famine was in Odisha. So we were uh, grown up with the stories of starvation, with the stories of poverty. Something I have seen myself, something I have experienced myself, something I have heard.
So poverty was in my mind, and I believed जी poverty comes from our denial of our right to work. The right to work, which our constitution has not yet say accepted as a fundamental right. So it's a so that is the thing. Once we accept that fundamental right, the right to work, along with the duty to work, then you will see that each and everybody will have some work to do. Nobody will be unemployed, or you can say that lack of earning opportunity. Each and everybody will have that opportunity, and we can address the poverty systematically. Charity is no answer to poverty. So that was my inspiration to start Beggars Corporation. You can say that this is, you can compare it with the poverty lab, or you can say the J-PAL of Abhijit Banerjee. We are doing the same kind of experiment here, but in a different. सो बैगर कॉरपोरेशन किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से आप बैगर्स को अप्रोच करते हैं, फंक्शन कैसे करते हैं, एंड देन उसको कन्वर्ट करने का मैकेनिज्म क्या डेवलप किया है, किस तरीके से उसको कन्वर्ट करते हैं? पहला चीज होता है कि बेगर्स कम्युनिटी के साथ काम करने का जो चैलेंज है कि ट्रस्ट फैक्टर। कभी हम उनको ट्रस्ट कर नहीं पाते, कभी वो हमको ट्रस्ट कर नहीं पाते। जी ये जो ट्रस्ट फैक्टर है और द ट्रस्ट डेफिसिट, व्हाट आई कैन से, दैट ट्रस्ट डेफिसिट मेक्स ए मैन आइदर बेगर। तीनों ऑप्शन होता है उसके पास। आइदर वो सुइसाइड कर लेता है, या बेगर बन जाता है, या वो क्रिमिनल बन जाता है। वी मस्ट थैंक गॉड कि दैट दे डिडंट से बिकम क्रिमिनल। सो चाहे वजह जो भी, अगर इतने बड़े फोर्स आज क्रिमिनल बन जाता तो हम तो सेफ नहीं रहे। तो एटलीस्ट एक चीज है कि वो सुइसाइड भी नहीं किए। सो उनके बीच कुछ ना कुछ तो होप है जिसके वजह से वो सुइसाइड नहीं किए, और क्रिमिनल एटीट्यूड उनका नहीं है। अगर वो बीच के रास्ते में अगर वो भीख मांग रहे हैं तो उसका वजह क्या है? अगर भिखारी को एक कॉइन देने के बदले, जब हम कभी एक भिखारी देखते हैं, अगर हमारे गाड़ी से उतर के हम 2 मिनट उसके साथ बात करते हैं कि वो भिखारी क्यों बना, तो आप देखेंगे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो। हमको हमारे हाई सिटाडेल से उतर के रास्ते को जाना है, उसके साथ 5 मिनट या 2 मिनट, इवन 2 मिनट उसके साथ एक उसको कॉन्फिडेंस में लेके बात करना। जी अगर वो चीज हम कर लेंगे तो सोसाइटी का जो ट्रस्ट डेफिसिट है, वो ट्रस्ट डेफिसिट रहेगा नहीं, वही से शुरू होगा। और हम वही से ही शुरू किए थे। आज भी हम ट्रस्ट डेफिसिट को फेस कर रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा कि वी अचीव द ट्रस्ट और इवन वी आर एबल टू ट्रस्ट। ये नहीं होता है, ये तो चलते रहेगा। जी लेकिन बात ऐसा है कि अपना जो दिमाग है उसको खुल के रखना। एक प्री डिफाइंड माइंडसेट में हम नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम बुद्धू नहीं बन जाएंगे। ये चीज है, अगर हम एक कंपैशनेट और एक ह्यूमैनिटेरियन माइंड लेके, सॉरी दिल लेके, और उसके साथ एक प्रैक्टिकल माइंडसेट, प्रैक्टिकल दिमाग लेके हम जाते हैं कि उसको हम कैसे टर्न करेंगे, मेन स्ट्रीम को लाएंगे, मार्केट के साथ जुड़ेंगे, तो फिर आप देखेंगे चीज बहुत आसान हो जाए। राइट। सो वाराणसी में बैगर कॉरपोरेशन सबसे पहले स्टार्ट किया, कहीं कोई स्पिरिचुअल रीजन भी इसके पीछे रहा, या जो पावर आपको दे रहा है, जैसे काशी विश्वनाथ का स्थान है वाराणसी, तो वाराणसी जो इसको इसकी नींव रखी गई वाराणसी में, उसका क्या कोई स्पिरिचुअल कारण भी है, और क्या उससे भी कुछ पावर आपको मिल रहा है? कुछ चीज हमारे अनजाने में हो जाता है। सो अगर आप अल्केमिस्ट का वो लाइन पढ़े होंगे, पालो कोहिलो का, जिसमें अल्केमिस्ट बोल रहा है सांटियागो को
कि when somebody wants something from the core of his heart, entire universe conspires to help him. सो आप वो यूनिवर्स को नेचर बोले, भगवान बोले, लोगों का गुडविल बोले, कुछ ना कुछ तो है। जैसे मैं बनारस से नहीं हूँ, मैं यूपी से भी नहीं। जी मैं तो दिल्ली से आया था, लॉकडाउन के बाद मैं दिल्ली से आया था बनारस, और कुछ करने के लिए आया था, और लास्ट में बेगर्स कॉर्पोरेशन खड़ा। ग्रेट। तो ये तो है, लेकिन हम सिस्टमेटिकली चाहते हैं। और अगर ऐसे भी देखेंगे, मैं उसको उसको आप रिलीजन के साथ मत जोड़ें। ये जो स्पिरिचुअलिज्म का बात आप कह रहे हैं, स्पिरिचुअलिज्म, आई बिलीव द यूनिवर्स, द लॉ ऑफ यूनिवर्स इज स्पिरिचुअलिज्म। जी द लॉ ऑफ यूनिवर्स, what the alchemist told to Santiago, the whole world conspires to help him. So the whole world conspires to help our cause. कल भी मैं मीटिंग में वही चीज बोल रहा था कि मैं कुछ नहीं किया हूं, मैं लोगों का कलेक्टिव गुडविल का जस्ट एक माध्यम बना के वहां बैठे, जी और कुछ नहीं हूं। और ये माध्यम इस ढंग से बन जा रहा है कि कहाँ से लोग जुड़ रहे हैं, कैसे जुड़ रहे हैं, वो भी मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन वो होते जा रहा है। आप उसको काशी विश्वनाथ जी की दया बोले, आप उसको लोगों का गुडविल बोले, आप उसको विल पावर बोले, जी जो भी है। अब तक हम कोई इंडस्ट्रियलिस्ट से हेल्प मदद नहीं लिए, लेने का इरादा भी नहीं है। आज तक कोई वीसी फार्म से पैसा नहीं लिए, और हम रिफ्यूज कर रहे हैं वीसी फार्म। और जी मैं तो हैरान हो जाता हूँ कि जिस वीसी फार्म को टर्म शीट साइन करने के बावजूद भी मैं रिफ्यूज कर दिया, वो वो वीसी फार्म वाले हमारे मीटिंग में अनजाने में जुड़ते रहते हैं। कल भी वो लोग जुड़े रहते थे, और वो मुझे एंटायर मीटिंग का समरी मुझे भेजे मेल। तो जी वो चीज भी होता है, यू कैन से कि दैट इज अ काइंड ऑफ गुडविल। और वो गुडविल वो गुडविल को हम रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि ये एक ऐसी सामाजिक कमजोरी है जिसको किसी लालच के बिना ही हम परस्यू कर सकते हैं। इस मिशन को तभी आगे ले जाया जा सकता है जब उसमें कोई ग्रीड ना हो, कोई लालच ना हो। दैट एग्जैक्टली। इज द मेन इम्पोर्टेंट थिंग टू कैरी टेक दिस फॉरवर्ड। सो अभी किस तरीके से आपने प्लान किया है फर्दर, किस किस तरीके से बैगर कॉरपोरेशंस आगे आने वाले कुछ समय में, 2-3 सालों में अलग अलग शहरों में किस तरीके से फैलेगी और कैसे बैगर्स को काम करने में हेल्प करेगी? हमारा क्लियर कट ब्लूप्रिंट है। पहला चीज था कि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उसके बाद वो एक्सपेरिमेंट को हमने कंपनी में टर्न किए गोइंगली, और अभी वो कंपनी को हम एक कैंपेन में टर्न कर रहे हैं, या एक सोशल मूवमेंट में टर्न। जी 30th जून में जब डॉक्टर श्रीवास सहस्त्र नाम फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्राथक्लाइड यहाँ से आए थे, तो इनाग्रेट किए सिटीजन्स फॉर बेगिंग फ्री इंडिया। और वो सिटीजन्स फॉर बेगिंग फ्री इंडिया में इंडिया से और इंडिया के बाहर से लोग जुड़े हुए हैं। कल भी जो मीटिंग था, वो मीटिंग में ऐसे भी लोग जुड़े हुए थे, दूसरे दूसरे ईयर। जी तो हम उसको एक मूवमेंट में बना रहे हैं, एक सोशियो इकोनॉमिक मूवमेंट। आंदोलन कहने से हमको लगता है कि कोई स्लोगन देना है, किसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना है। हम बोल रहे हैं कि फ्रॉम प्रोटेस्ट टू पॉसिबिलिटी, जी फ्रॉम प्रोटेस्ट टू पॉसिबिलिटीज, फ्रॉम स्लोगन टू सॉल्यूशन। हम एक सॉल्यूशन मॉडल लेके जा रहे हैं। तो ये तो थ्योरी रह गया। उसका क्लियर कट तरीका है कि जैसे हम एक उसको सिटीजन्स फॉर बेगिंग फ्री इंडिया हम बना लिए, और बनारस में काम कर रहे हैं। कमिंग 3 साल तक हमारा फोकस बनारस है। दूसरे एरिया को हम जाएंगे, लेकिन फोकस बनारस है। एक जगह एक फुल प्रूफ मॉडल हम बनाएंगे, एक सिटी को सस्टेनेबली एंड स्केलेबली हम एक बेगिंग फ्री सिटी में टर्न करेंगे। तो उसके बाद हमारा काम आसान हो जाएगा कि हमको दूसरे सिटी में जाके बेगर्स को समझाना, ये सारे काम करना नहीं पड़ेगा। एक मॉडल खड़ा हो गया। वो जी मॉडल जब खड़ा हो गया, तो वो मॉडल को हम रेप्लिकेट करेंगे दूसरे जगह, सरकार के माध्यम से हो, कंपनी के माध्यम से हो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के माध्यम से हो, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के माध्यम से हो, कहीं ना कहीं किसी के माध्यम से।
जैसे लखनऊ से हमको बार बार मैसेज आ रहा है, लखनऊ म्युनिसिपल कमिश्नर हमारे साथ बात कर चुके हैं और हमारे साथ एमओयू साइन होने वाला भी, ये ऑलरेडी हम ड्राफ्ट भेजे हैं। तो हो सकता है कि वो भी वहाँ लागू करे। दिल्ली से आया था, दिल्ली गवर्नमेंट से भी आया था मेरे पास, ये हमने ऑफर किए, हमने उनको एक प्रपोजल भेजे हैं। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं से हो जाए। और हमारे जो सिटीजन्स फॉर बेगिंग फ्री इंडिया है, उसमें क्या होता है जी कि हर बेगर को एक मेंटर उसको मेंटरिंग कर। जी तो ये जो लोग होते हैं, हम इसलिए वीसी फार्म से पैसा नहीं लेते हैं, गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट नहीं है, कंपनी पर डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए कि हम उसको एक सोशल मूवमेंट में बना देते हैं। वन बेगर मीन्स उसको मेंटरिंग करने के लिए एक आदमी आ जाता है, उसके पर वो 2 लाख इन्वेस्ट करेगा 3 साल तक। वो 2 लाख चाहे वो एक साथ इन्वेस्ट करे, चाहे 4 मंथली इंस्टॉलमेंट में इन्वेस्ट करे, और 3 साल में वो अपना पैसा अपना आरओआई के साथ, वो अपने रिटर्न के साथ वो ले जाता है। तो पैसा इन्वेस्ट करता है, प्रॉफिट भी ले जाता है, और प्रॉफिट लेने के बावजूद भी यानी कि एक जो 2 लाख रुपया वो इन्वेस्ट करेगा वो उसको वापस भी ले सकता है और विद प्रॉफिट ले सकता है। विथ प्रॉफिट वो ले जाएगा। और प्रॉफिट लेने के बावजूद भी, प्रॉफिट लेता है, अपना कैपिटल ले जाता है, और उसके बावजूद भी एक बड़ा एग्जाम्पल खड़ा करके हो जाता है कि वो आदमी कल भीख मांग रहा था, उसके फैमिली भीख मांग रहे थे, मैंने उनको एक नया लाइफ, सारे जिंदगी उनके साथ फोटो उठा पाएगा, उसके साथ वीडियो ये उसका रह पाएगा, कभी आएगा उनके साथ वो मिल पाएगा, उनके घर को जा पाएगा। तो ये उसको एक, उसके पास एक लाइव डॉक्यूमेंटेशन रह जाता है सारे जिंदगी के। मैं नहीं जानता हूँ कि आप जब पुण्य के लिए दान करते हैं, भगवान आपको किस जन्म में क्या पुण्य देते हैं। पर जन्म में तो मैं विश्वास नहीं करता हूँ, ना जी पूर्व जन्म में मेरा विश्वास है, ना पर जन्म में मेरा विश्वास है। मैं कंप्लीटली मानता हूँ कि इस जन्म में मैं जो किया हूँ, वो जन्म का पाप हो या पुण्य हो, इस जन्म में मुझे मिलना चाहिए और मिलता भी है। जी तो इस जन्म में जो आदमी हमारे वहाँ इन्वेस्ट करता है, अपना पैसा ले जाता है, एक पैसा डोनेट ना करते हुए, और एक अपना प्रॉफिट भी लेते हुए भी, ये और एक आदमी को सारे जिंदगी के लिए ये एक नया पूरा चेंज करके जाता है, उसको एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक स्टोरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अपने साथ लेके जाता है, जो कल अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, अपने पोते पोती को भी बोल पाएगा कि देखो ये आदमी का मैंने लाइफ चेंज कर सोसाइटी दिया। में अच्छा उसका काम तो एक, कंट्रीब्यूशन क्या रहा वो एटलीस्ट राइट, सेल्फ सेटिस्फेक्शन में भी कहीं आएगा और किसी को एग्जाम्पल भी दे पाएगा। एग्जाम्पल दे पाएगा। हम उसको बोलते हैं कि सोशल इम्पैक्ट इंडेक्स। जी आपका सोशल इम्पैक्ट इंडेक्स क्या है, आपका सोशल वैल्यू क्या है। हम खूब जल्दी हमारा एक एप्लीकेशन हम लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं, जिस एप्लीकेशन के माध्यम से जो सिटीजन्स फॉर बेगिंग फ्री इंडिया में जो लोग जुड़ रहे हैं, उसके माध्यम से जुड़ेंगे वो। और उसमें क्या होगा कि आप खुद टेस्ट कर पाएंगे कि आपका सोशल वैल्यू क्या है, आप अब तक सोशल कंट्रीब्यूशन आपका क्या रहा है, आपका सोशल इम्पैक्ट इंडेक्स क्या है। और आप अगर अगर यहाँ आप इन्वेस्ट करते हैं या कस्टमर बनते हैं, तो पैसा किसके पास जाता है, उसके लाइफ में क्या परिवर्तन आता है, आप उसको लाइव ट्रैकिंग कर पाएंगे, और वो भी आपका रेटिंग बढ़ते रहे। जी सो एक, तो हम एक सोशल इम्पैक्ट इंडेक्स हम बना रहे हैं उसके माध्यम से, जो विजिबल होगा कि वो आदमी का सोशल कंट्रीब्यूशन क्या रहा। सो दैट इज वन थिंग वी आर क्रिएटिंग। सो कोई हमारा भी जो ये है, ऑर्डिनरी जो सिटीजन है, कोई कोई भी भारतीय नागरिक है, वो आपसे अगर जुड़ना चाहे और एक सोशल इम्पैक्ट लाना चाहे, अपनी कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के लिए देना चाहे, तो किस तरीके से जुड़ सकता है, उसका प्रोसेस क्या है? प्रोसेस, उसमें 3 प्रोसेस है बेसिकली। पहला प्रोसेस है कि मेंटरिंग का, जी वन बेगर वन मेंटर, हम उसको बोलते हैं कि वन बेगर वन मेंटर। जैसे एक बेगर आता है तो एक मेंटर उसके साथ खड़ा हो, और जी वो उसको, उसके लिए वो पैसा इन्वेस्ट किया। उसमें एक ट्राइपार्टिट एग्रीमेंट होता है, कंसर्न बेगर, इन्वेस्टर और बेगर्स कॉर्पोरेशन के बीच एक ट्राइपार्टिट एग्रीमेंट होता है। इन्वेस्टर पैसा देता है, बेगर्स को ऑनबोर्डिंग करना, उसको सिलेक्ट करना, उसका वेरिफिकेशन करना, उसका रिलोकेट करना, उसको ट्रेनिंग देना, उसका वेंचर खड़ा करना, उसका मार्केटिंग कैसे होगा, उसका फाइनेंस मैनेजमेंट कैसे होगा, उसका लाइसेंस वगैरह कहाँ से आएगा,
वो टैक्स कैसे देगा, उसका स्केल अप कैसे होगा, ये सारे के सारे चीज उसको बेगर्स कॉर्पोरेशन करता है। 3 साल तक हम उसको हैंड होल्डिंग, तो नॉर्मली हम सोचते हैं कि 3 साल में रिपे होके उसका स्केल अप हो जाना चाहिए। तो जी वो बात हम करते हैं। तो बेगर्स कॉर्पोरेशन का एक, बेगर्स कॉर्पोरेशन, बेगर और वो जो मेंटर है उनका बीच एक ट्राइपार्टिट एग्रीमेंट होता है, एक है। और उसमें 2 लाख, हम वन बेगर वन मेंटर मीन्स उसमें 2 लाख का इन्वेस्टमेंट का बात आता है। 2 लाख में 50,000 उसके लिए खर्चा हो जाता है, उसका ऑनबोर्डिंग करना, उसको ट्रेनिंग देना, उसको रिलोकेट करना 3 महीने में, और उसका लाइवलीहुड कंपेंसेशन उसको देना वो तीन तीन महीने तक, क्योंकि वो खाएगा क्या फिर। वो सारी चीज जो होता है उसमें 50,000, उसमें चला जाता है 50,000। 1 लाख उसको दिया जाता है उसका वेंचर शुरू करने के लिए, 1.5 लाख हो गया। 50,000 बाकी जो खर्चा होता है उसका लाइसेंस, फाइनेंस मैनेजमेंट से शुरू करके एंटायर प्रोसेस उसका जो हैंड होल्डिंग किया जाता है 3 साल तक, जो मैनेजमेंट उसका होता है, जिन एक्सपर्ट को हम उनके साथ जोड़ते हैं, ये सारे का एक कॉमन एक्सपेंडिचर हो जाता है। जो कॉम्प्लायंसेस है, लीगलिटीज है, फाइनेंस मैनेजमेंट है, ये सारे के सारे, मार्केटिंग है, कोलाबोरेशन से प्रमोशन है, ये सारे के सारे चीज उसमें वो 50 है। तो 2 लाख उसके लिए खर्चा, वही है उसका सिस्टम। 2 लाख कोई एक साथ दे सकता है, कोई 4 मंथली इंस्टॉलमेंट में भी दे सकता है, क्योंकि बेगर्स 3 महीना ट्रेनिंग लेंगे तो वो तो फेज बाय फेज में भी दे सकता है। ओके और 3 इयर्स में ये उसको रिटर्न ले सकता है, वो चीज है। और ओके ये चीज है, चाहे तो वो उसमें री इन्वेस्ट भी कर सकता है। दूसरा एक है, अगर कोई ग्रुप ऑफ ये चाहे कि वो इन्वेस्ट करने के लिए, कोई फैमिली का 3-4 लोग चाहे, कोई ऑफिस का 3-4 दोस्त चाहे, कोई ऑफिस चाहा, या कोई ऐसा इंडिविजुअल है जो 25-30 लाख इन्वेस्ट कर पाएगा, वो चाहा, तो हम वो एक एसपीवी में इन्वेस्ट कर पाएगा। हम 10-12 भिखारी को लेके हम एक प्रोडक्ट या एक सर्विस का एक एसपीवी हम बनाते हैं, जिसको स्पेशल पर्पस व्हीकल बोला जाता है, ये एक लीगल टर्म है। और वो एसपीवी दैट विल बी रजिस्टर्ड एज ए एलएल, जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर ये एक एलएलपी होके रजिस्टर होता है। उसमें जो 12 भिखारी हम लेते हैं, वो 12 भिखारी परिवार का 24% स्टेक उसमें रहता है, पार्टनरशिप स्टेक। उनके लिए जो इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो एक आदमी हो, 12 आदमी हो, या 3-4 दोस्त मिलके हो, या एक ऑर्गेनाइजेशन हो, उनका उनके हाथ 24% रहता है। और बेगर्स कॉर्पोरेशन उसमें 52% रखता है, क्योंकि वो तो सारे सिस्टम को मैनेज करता है 3 साल तक। आपका पैसा का जो सेफ्टी, उसका गारंटी, रिटर्न का गारंटी, ये सारे बेगर्स कॉर्पोरेशन का होता है, तो इसलिए वो बेगर्स कॉर्पोरेशन उसका वो सिस्टम। तो उसमें कंप्लीटली लीगली स्टेक रह जाता है कंपनी कंपनी एक्ट के हिसाब से। उसके बाद भी एक चीज है कि जी कुछ लोग होते हैं वो इन्वेस्ट कर नहीं पाएंगे, 2 लाख इन्वेस्ट कर नहीं पाएंगे, ये सारे कर नहीं पाएंगे। दे कैन बी कस्टमर्स ऑल्सो, दे कैन बी कस्टमर्स। आप जो चीज खरीदते हैं, अगर वो चीज का प्रोडक्ट हमारे पास है, प्रोडक्ट हो, सर्विस हो, हमारे पास है, हमारा प्रोडक्ट लाइन अभी बढ़ते जाए, वी जी आर venturing into a kind of say e-commerce also, e-commerce for the poorest class, and people are coming forward to have partnership with us. That's why we are thinking of this kind of a people's market. तो उसमें जो चीज सारा आएगा, बहुत सारे प्रोडक्ट होगा, तो ये उसमें एक मिनिमम टिकट साइज होता है 10,000 टिकट साइज का मतलब है कि वीकली 200, विच इज वेरी मच अफोर्डेबल। सो 10,000 मिनिमम है, आप ज्यादा तक जितने तक जा सकते हैं। कल अगर हम आपको ऑर्गेनिक राइस से शुरू करके ऑर्गेनिक दाल तक देते हैं, बनारसी साड़ी भी देते हैं, कांजीवरम साड़ी भी देते हैं, अगर सारे प्रोडक्ट अगर, और हम वही प्रोडक्ट लेते हैं जो एथिकल है और ह्यूमैनिटेरियन। गरीब लोग जिस प्रोडक्ट को बनाते हैं, जिसमें कोई धनी या जो रिच बिजनेसमैन का ये नहीं होता है, हम उसी प्रोडक्ट को लेते हैं। और जो प्रोडक्ट ऑर्गेनिक होता है, हाथ में बनाया जाता है, जी जो फैक्ट्री में बनाया जाता है, वो प्रोडक्ट हम नहीं लेते। So we are catering to the marketing needs of the self-help groups, of the rural women, of the farmers, small and medium farmers. So इन लोगों को हम एक मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी देते हैं हमारे माध्यम से, और बहुत सारे प्रोडक्ट लाइन उसमें आ जाए। तो प्रोडक्ट लाइन जो भी हो, उसमें मिनिमम टिकट साइज है 10,000।
सो उसमें क्या होता है कि आप ओनली कस्टमर नहीं रहते, आप उसका एक मेंबर बन जाते हैं। सो यू बिकम ए वैल्यूड मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, नॉट जस्ट ए कस्टमर। जो कस्टमर होता है वो तो एक बार खरीद लिया, उसके बाद फिर उसका कुछ प्रोडक्ट का खराब हुआ तो वो फिर दौड़ते रहेगा, और कस्टमर पैसा दे दिया तो उसका बात खत्म। लेकिन हमारे हमारे साथ लोग ऐसे जुड़ते हैं कि जो कस्टमर भी हमारा है, वो भी हमको फोन करते हैं कि हम यहाँ बनारस आए हैं, आपके पास हम पहुंचेंगे, या हम यहाँ बनारस जा रहे हैं, वो भी हमको कनेक्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि बेगर्स कॉर्पोरेशन एक फैमिली बन के रहे, जी ये एक कॉज बेस्ड फैमिली बन के रह जाए। तो ये चीज हम बना रहे हैं। सिटीजन्स फॉर बेगिंग फ्री इंडिया इज वर्किंग फॉर दैट, टू ब्रिंग टुगेदर द सोशली कॉन्शियस सिटीजन्स, those who want to give back something to the society, to do something for the society, and to create a visible and viable impact for the long term, for lifetime. तो इन लोगों को हम इकट्ठा कर रहे हैं उसी के माध्यम से। तो ये एक बहुत बड़ा ये है। उसमें मेंबर कस्टमर हो गए, उसमें मेंटर हो गए, और उसमें आप पार्टनर भी बन गए। तीनों पार्टनर है। जी। एक जो सबसे यूनिक चीज बैगर कॉरपोरेशन में मुझे देखने को लगी, जनरली जितनी भी सोशल इम्पैक्ट कंपनीज मार्केट में आती हैं, जो भी सोशल इम्पैक्ट के लिए काम करते हैं, वो एनजीओज में ही काम करते हैं। कोई प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज में बहुत ही रेयर देखने को, या मुझे आज तक मैंने नहीं देखा कि सोशल इम्पैक्ट में अब एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी आई है। आपने इसको फैसला लिया एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी का, जो कहीं ना कहीं ये थीम से मैच भी करता है और जरूरी भी है, क्योंकि हम एक तरफ तो बैगर को बैगिंग फ्री बना रहे हैं कि वो भिक्षा मुक्त बने, और अल्टीमेटली अगर हम भी कहीं से चैरिटी लेंगे तो फिर वो कहाँ से भिक्षा मुक्ति हुई। शायद यही थीम रही हो जो मैं सोच पा रहा हूँ इसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल यही थीम रहा। सीधे से भाषा में अगर हम बोलेंगे, अगर हम खुद भीख मांगने के लिए जा रहे हैं कंपनी के पास, सरकार के पास, जी तो कल भिखारी को कैसे बोलेंगे कि तुम भीख मत मांगो? जी तो हम नहीं भीख भीख मांगेंगे। रादर हम एक सिस्टम ऐसे बना रहे हैं कि जहां भिखारी ओनली काम नहीं करेगा, पैसा नहीं पाएगा, ही और सी इज नॉट जस्ट एन एम्प्लॉय, जी उसके पीछे भी और एक चीज है। हम लाइवलीहुड में बिलीव नहीं करते हैं। लाइवलीहुड का मतलब है कि कैसे भी मेरा आज का रोजी रोटी मुझे मिल गया। हमारा हम जब लाइवलीहुड के बात कहते हैं कि लाइवलीहुड में हमारा एम्बिशन रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, हमारा एस्पिरेशन रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, हमारा जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के बात हम कर रहे हैं कि हमारा हेल्थ फैसिलिटीज रहे, हमारा एजुकेशन का ये रहे, हमको हमको अच्छा ड्रिंकिंग वाटर मिले, हमको अच्छा घर मिले, ये सारे चीज लाइवलीहुड में नहीं आता है। जी उसके लिए आपको प्रॉफिट में ये में जाना पड़ेगा। तो हम जब प्रॉफिट का बात कह रहे हैं, उसमें हम कह रहे हैं, हम एक सीधा सा एग्जाम्पल देते हैं। आज जो लेबर होता है, वो लेबर, आपका रास्ता हो, आपका ब्रिज हो, आपका घर हो, आपका अपार्टमेंट हो, आप उसका सोच ही नहीं पाएंगे जब लेबर नहीं हो। और वही लेबर जब घर बनाने के बाद ये आपका अपार्टमेंट के गेट के पास भी आ नहीं पाएगा। दरवान उसको वहां तक वॉल को, दीवार को टच करने के लिए भी नहीं देगा, लेकिन बनाया वो है। जी उसमें उसका कोई मालिकाना नहीं है। तो पैसा ले गया और चला गया, और मुनाफा लेके कोई एक बड़ा बिल्डर उसका मुनाफा लेके वो अपने रास्ते में चला गया, और वो लेबरर लेबरर होके रहे। तो उसमें जो चीज है, हम उनको मालिकाना देना चाहते यानी कि हैं कि वो, लिवलीहुड के साथ साथ आप उनकी, उनके बच्चों की एजुकेशन, उनका लिविंग स्टैंडर्ड किस तरीके से ऊपर आए, उन सभी चीजों पे भी काम कर रहे हैं। मालिकाना भी दे रहे हैं। मालिकाना का मतलब जैसे मैं आपको बोल रहा था कि जो हम एसपीवी बनाएंगे, एलएलपी बनाएंगे, वहाँ बेगर्स का भी 24% स्टेक रहता है। ओके इन्वेस्टर बेगर से बड़ा नहीं होता है। हम बोलते हैं कि इन्वेस्टर का 24% है तो बेगर्स का भी 24% जी समान है, क्योंकि पैसा हो सकता है इन्वेस्टर का, काम तो करेगा बेगर ना। तो बेगर को हम कंपनी का मालिकाना दे रहे हैं। जी ये चीज हम कर रहे हैं। तो ये ओनली क्रिएटर ऑफ वेल्थ नहीं है, ये क्रिएटर एंड ओनर ऑफ वेल्थ भी बनता है। वो चीज हम चेंज कर रहे हैं कि मालिकाना दे रहे हैं। मालिकाना मालिकाना देने का सिस्टम नहीं है। इसलिए जो प्रॉफिट मेकिंग हम उसको बोलते हैं कि प्रॉफिट विथ पर्पस कंपनी, पीडब्ल्यूपी हम बोल रहे हैं।
तो प्रॉफिट बेगर्स का एक स्टेक भी कंपनी के अंदर रहेगा। जी, बेगर्स का एक स्टेक रहता है कंपनी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जी चौधरी जी उसको अच्छी ढंग से जानते हैं। हमारे बिगिनिंग स्टेज में जब हम रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे थे, हमारे साथ एक लेडी जुड़े हुए थे जो दिल्ली स्किल यूनिवर्सिटी का जो बिजनेस प्रोसेस का वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, नाम नहीं बोलूंगा, अभी वो कनाडा में है। और वो अभी कनाडा में भी वो एचओडी है। और उसके साथ साथ जो पीडब्ल्यूसी जैसे कंपनी है उसका सीनियर एडवाइजर भी वो जी हमारे साथ जुड़े होते थे। और जब वीसी फार्म वाले हमारे साथ मीटिंग ले रहे थे, उनको वो बोल रहे थे आपका तो ग्लोबल टीम है, मैं बनारस में बैठा हूँ, बद्री दिल्ली में बैठा है, और वो जो थे लेडी प्रोफेसर हमारे वो कनाडा में बैठे हुए थे। वो हमारे साथ एक बार्गेन कर रहे थे वो कितना परसेंट स्टेक लें। वो बार्गेन चल रहा था उनके साथ। और वो मुझे ऑब्जेक्शन कर रहे थे कि आप बेगर्स को स्टेक क्यों देंगे। वो ऑब्जेक्शन कर रहे थे कि आप बेगर्स को 24% स्टेक दे रहे हैं और मुझे 10% देने के लिए भी मना कर रहे हैं। मैंने बोला मैडम कंपनी जी भिखारियों का है, नाम उनके नाम पर भी कंपनी है, काम भी उनका है, नाम भी उनका है। मैं उनको 24% दे रहा हूँ। थैंक गॉड भिखारी इतना पढ़े लिखे नहीं है, नहीं तो मुझे क्वेश्चन करते कंपनी तो हमारा है, आप 24% हमको देके ज्यादा परसेंट आप क्यों रख रहे हैं। जी अच्छे है कि वो इतने पढ़े लिखे नहीं है तो हमको क्वेश्चन नहीं कर पा रहे। लेकिन मुझे ये चीज बोलिए कि मैं आपको 10% भी क्यों दूं, आप क्या करेंगे। जी एंड फाइनली वी ड्रॉप्ड हर। वो मुझे बोले थे कि हम यहाँ जाएंगे, मैं आपके लिए वो पेपर लिखूंगा, यूएन में वो बोलने के लिए जाऊंगा, अ, उसमें वर्ल्ड बैंक में वो बोलने के लिए जाऊंगा, आईआईएम में वो बोलने के लिए जाऊंगा। मैंने बोला कि मैडम आप बोलना कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, आप जैसे बहुत लोग तो गरीब के लिए बोल रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि एक दिन वही जो भिखारी है जो कल ट्रांसफर होके एंटरप्रेन्योर बन रहा है, वो एक दिन आईआईएम के स्टेज में खड़े हो, आईएमएफ का स्टेज में खड़े हो, अपना लाइफ बोलने की, कि वो कैसे अपना लाइफ का परिवर्तन खुद किया। वो जी मेरे लिए सबसे बड़ा बात होगा। मेरे लिए कोई प्रोफेसर बोलना, कोई इकोनॉमिस्ट बोलना जरूरी नहीं। सो दिस इज व्हाट वी वांट टू क्रिएट। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, वी ड्रॉप्ड हर। हमने उनको ड्रॉप कर दिया जी हमारे बोर्ड से। हमने ड्रॉप कर दिए क्योंकि हमने देखे कि अलाइन नहीं कर रहा है थॉट। जब थॉट अलाइन नहीं कर रहा है और कंट्रीब्यूशन नहीं है तो हम क्यों लेंगे। जी सो सो यू कैन से कि दिस इज द कमिटमेंट वी वांट टू क्रिएट। कि कल कोई, मैं तो चाहता हूँ कल कोई भिखारी का बच्चा वहां पाठ पढ़ के इतना काबिलियत उसके हाथ आ जाए कि वो आके इस चेयर में सीईओ होके कल बैठे और मैं रिटायर कर जाऊं। जी दैट इज व्हाट वी वांट। अगर आप पूछेंगे कि मेरा सक्सेस क्या होगा, वही मेरा सक्सेस होगा। दैट्स ग्रेट, दैट साउंड्स ग्रेट। सो लास्टली आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे सोसाइटी को, जो न्यू कमर्स हैं वो किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं आगे इस मिशन के लिए, कोई भी आपका मैसेज जो इम्पैक्ट कर पाए उनको। सोसाइटी को एक ही मेरा मैसेज है। हम जो इंडियन है, हम बहुत सिंपैथेटिक है, या बहुत हम भगवान को डरते हैं। इतना डरते हैं भगवान को या इतना सिंपैथेटिक क्या है मैं नहीं जानता हूँ दोनों से। जी कि हम जो आम इंडियन है, हम साल में 28,000 करोड़ दान दे देते। वो पैसा कोई कंपनी का पैसा नहीं है, सरकार का पैसा नहीं है, एनजीओ का पैसा नहीं। ये हम जैसे आम आदमी का पैसा है। और ये जो रिपोर्ट मैं बोल रहा हूँ, ये रिपोर्ट मेरा रिपोर्ट नहीं है। पेन एंड कंपनी जो इंटरनेशनल एजेंसी है, उसका इंडिया फिलांथ्रोपी रिपोर्ट 2022 आप देख लीजिए। जी इंडिया फिलांथ्रोपी रिपोर्ट 2022 के हिसाब से 2021 में 2021 में आम इंडियंस 28,000 करोड़ दान दिए। और वो 28,000 करोड़ से ओनली 18% गया था डिफरेंट एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन। गवर्नमेंट को गया था 1%। कोरोना का टाइम था, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड को ओनली 1% का। दैट मीन्स ये लोगों का हमारे सरकार पर भरोसा नहीं है। ओके, सॉरी 19% वहां से गया था, 1% गया था सरकार को, 18% गया था डिफरेंट मंदिर ट्रस्ट, जी
बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होता है, चाइल्ड रिलीफ एंड यू, हेल्पेज इंडिया, इस्कॉन, ये सारे के पास मिलके 18% गया। तो 19% चले जाने के बाद बाकी 81% का कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वो पैसा कहाँ गया। जी आपके पैसा में कोई बेगिंग रैकेट खड़ा हुआ, आपके पैसा में कोई ड्रग पेडलिंग रैकेट खड़ा हुआ, आपका पैसा कोई मुजाहिदीन के पास गया, कोई हिसाब आपके पास नहीं है। जी लेकिन फिर भी आप 28,000 करोड़ दान देते। इंडिया में भिखारी कितना है? सरकार के हिसाब के मुताबिक 2019 मार्च में दी देन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिस्टर थोर चंद गहलोत जो डाटा दिए थे पार्लियामेंट में, वो डाटा के मुताबिक 4,13,670 बेगर्स थे इंडिया। तो 5 लाख आप मान के चलिए, अगर जी 5 लाख भिखारी है तो हमारे मुताबिक, हमारे हिसाब के मुताबिक अगर देखते हैं 2-2 लाख देने से अगर भिखारी का लाइफ बदल जाता है वंस फॉर ऑल, और वो पैसा आपके हाथ फिर लौट के आ जाता है 3 साल के बाद, तो कितना खर्चा होगा? 10,000 करोड़ खर्चा। 10,000 करोड़ में जी सारे इंडिया वंस फॉर ऑल बेगिंग फ्री हो जाएगा और एक सिस्टम बन जाएगा कि नया भिखारी पैदा नहीं हुआ। क्योंकि भिखारियों के बच्चे भी स्कूल चले गए, जी उनके माँ बाप का रोजगार हो गया, वो कंपनी का मालिक बन गए, तो एक सिस्टम बन गया। तो 10,000 करोड़ टोटल। और इंडिया में अगर प्राइवेट डोनेशन आप देखे तो 28,000 करोड़ हम जैसे आम आदमी दे रहे थे, बाकी 75,000 करोड़ हमारे जो CSR फंड में जाता है पैसा, जो फैमिली ट्रस्ट में जाता है, जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जो फैमिली ट्रस्ट बना के रखे हैं, जो NGO के माध्यम से पैसा आता है, अनदर 75,000, 1,03,000 करोड़ प्राइवेट डोनेशन। तो उसका 10% में इंडिया कैन बी बेगिंग फंड्स फॉर ऑल। जी तो मेरा ये कहना है कि हम जो डोनेशन देने के बदले अगर हम इस पैसा को कोई एक आदमी का, एक भिखारी का जिंदगी बदलने के लिए हम इन्वेस्ट करें, हम वो पैसा तो रिटर्न पा जाते हैं, उसमें प्रॉफिट भी हम पा जाते हैं, और हम एक सोशल स्टिग्मा जो है, जो ब्लैक स्पॉट है इंडिया का, उसको भी हम वंस फॉर ऑल हम उसको दूर कर पाते हैं। और सारे जिंदगी के लिए हम एक नजीर क्रिएट करके रख पाएंगे कि ये फोटो वीडियो के साथ हमारे बच्चों को दिखा पाएंगे, हमारे पोते पोती को दिखा पाएंगे कि मैंने किसी का लाइफ बदलने के, मैंने किसी का लाइफ चेंज कर दिखाया। जी So this is my request. Let us pay back to the society. No government is bigger than the society. The society creates governments. Governments have come for 5 years, whichever government it may be. But the society was before that and will remain after that. 5 साल में सोसाइटी खत्म नहीं हो जाता है। जी तो हम क्यों डिपेंड करके रहेंगे कि एक सोसाइटी आके कर ले, एक कंपनी आके कर ले, एक VC फार्म आके कर ले। अगर हम हमारा डोनेशन को हम डोनेट ना करके उसको इन्वेस्ट करने के लिए हम कर ले, तो हमारे पैसा में 10,000 28,000 करोड़ हम आम आदमी डोनेट करते हैं साल में। 10,000 करोड़ मीन्स 1/3 में सारे इंडिया वंस फॉर ऑल बेगिंग फ्री हो जाएगा। बाकी पैसा को फिर आप दूसरा कॉज में लगाइए, जी आप पॉवर्टी हटाने के लिए लगाइए, किस बच्चों को पढ़ाने के लिए लगाइए, स्कूल अच्छे करने के लिए लगाइए। तो सारे 10, अगर 10 साल हम ऐसे पैसा लगाते रहेंगे ना, तो इंडिया का 10 into 3 30 प्रॉब्लम्स वी कैन सॉल्व, द सोसाइटी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स। जी दैट्स रियली तो ग्रेट। दैट इज, यस यस वही मेरा रिक्वेस्ट है जी कि हमारे जो कंसर्न सिटीजन्स को, हमारे यंग जनरेशन को, सबको मेरा वही रिक्वेस्ट है। जी मिश्रा जी, आपने समय निकाला और इतना इंस्पायरिंग पॉडकास्ट हमने आपके साथ रिकॉर्ड किया। आई वुड लाइक टू थैंक यू सो मच। आपने समय निकाल करके और ये सारा कुछ हमें समझाया।